if you know, so out of 100% inside your mind, 90% is your subconscious mind and 10% is your conscious mind. Right. अब दोनों दिमाग है ना, they are dumb. But again, because my vibe was strong, I'll tell you, I remember this picture very well. One of my worst headaches in my life मुझे एक दिन आया था when I was writing a book. Hello, everyone, and welcome to the fifth episode of Unscripted Me. Today, we have with us an author, a published author, has written a book at the age of 16. Can you believe it? And apart from that, he has completed 10 junior MBAs. He is also an international level athlete. He represented Team India, and he is also a damn good drum player because he is playing drum from last 9 years. So let's welcome Yagya Bisani. Hey Yagya, how are you doing? Thank you so much for that introduction and thank you so much for having me here. Yeah, so let's start. Just let me know about your book. Where do you want me to begin with Yeah, my so book? how it started, what's your book about, what's the name of the book, and everything. So if I talk about how it started, me personally, I've been developing myself into business leadership and entrepreneurship since last 3-4 years, Yeah. traveling to cities and states across India to attend workshops. And then I realized that 3-4 साल में मैंने बाहर से तो बहुत कुछ ले लिया. अब मुझे अंदर से खुद को निखारना था. Great. So the idea came of writing a book. And the reason behind was solemnly PR and credibility, if I'll be very honest with you. So if I travel to states and cities to attend workshop, to meet big dignitaries, वहां पे जब मैं बोलता हूँ कि at 16 I'm a book and sir I would like to give this to you, तो एक credibility बनती है जिसका larger objective होता है एक बड़ा network बनना. Right. And I really do go by the saying your network is your net worth. Yeah, exactly. So this was how I thought of start कि भाई चलो book लिख देते हैं. Okay. Then in June last year, when I was in 11th, I started writing this book. But then they say कि God have bigger plans for you. Yes. So June I got selected for the Indian team in the sport that I play, Ultimate Frisbee. Okay. And couple of my mentors recommended me कि मैं मेरा 100% अब फ्रिस्बी पे दूं, बुक बाद में लिख देंगे. ये अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, वो अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है. Exactly. और क्योंकि वो दैट वाज वेरी लार्ज लेवल, तो दिन में 12-15 घंटा प्रैक्टिस होती थी. Okay. एंड इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग. Yeah. ऑनेस्टली नहीं होता उसके बाद कुछ भी. So December में I completed with my championship and everything. January में I kick-started with this book project with only one goal कि 27th April को कुछ भी हो जाए मुझे ये book को launch करना है. Wow. And 21st April I had my book launch 7 days prior to that. So that's how I started with the goal making into the book. And बाकी तो आप सवाल करें, मैं जर्नी बताता हूँ. Yeah. So what is the name of your book? Roots to Root. And why you have choose this name only? देखिए, जब मैं बुक लिख रहा था उसके पहले मैंने भी कई सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ी है. Okay. और मेरे को ये रियलाइज हुआ था कि बहुत सारी बुक है ना, मोटिवेशनल बहुत होती है, इंस्पिरेशनल बहुत होती है. बट आज अगर कोई भी आदमी अगर एक मोटिवेशनल बुक पढ़ता है तो उसका क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पंप अप हो जाएगा और कल सुबह उठ के वो भूल जाएगा. Right. वो उस इंस्पिरेशन को, उस मोटिवेशन को चैनलाइज कहाँ करे? Okay. सो आई थॉट कि मैं जो बुक लिखूंगा उसमें मैं 30 बिजनेस लीडर्स के फंडामेंटल्स, कोर स्ट्रेंथ्स, प्रिंसिपल्स, फॉर्मूलाज, एथिक्स कि आप कहीं पे भी हो, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी करियर में, दीज आर फाउंडेशंस. अगर आप इन्हें यूज कर लोगे तो आप कहीं पे भी एक्सेल हो जाओगे. सो दैट इज व्हाई आर एथिक्स, आर वैल्यूज कम टू द रूट्स. और सक्सेसफुल तो सबको होना है, तो रूट सो रूट्स टू रूट. Okay. So in this book, I have gone through your book as well, and I just simply loved it. So you have introduced all the successful businessmen in this book.
that how Yeah. they become successful exactly, what they have done. So what, how long process this was? If I tell you about this, like I told you, I started in Jan and I finished by March 20th. So, but these 3 months were the journey I think that has made the best out of me in my life. क्योंकि I'll tell you मैं पागल हो गया था बुक के पीछे एंड ऐसा था कि क्योंकि मैं इतना पागल था और इतना शौक था तो वो थकान हावी नहीं हो रही थी मेरे पे Right. वो और मोटिवेट कर रहा था मेरे को एंड आई टेल यू मैं 3 महीना स्कूल भी नहीं गया हूँ माई स्कूल एक्नॉलेज कि यस दिस गाय इज वर्किंग क्योंकि आई कम फ्रॉम फाउंटेनेज स्कूल Yeah. और मेरी स्कूल सूरत से 35-40 मिनट्स लगता है बस स्टॉप से Right. स्कूल पहुंचना सो राइटिंग अ बुक इन 3 मंथ्स 40 मिनट बस में जाना और आना वॉज अ टाइम वेस्ट फॉर मी Right. those 3 months I've given my heart and soul दिन के 17-18 घंटे मैंने दिए हर दिन Wow. और उसमें से मैं अलग अलग सिटीज ट्रैवल करता था क्योंकि 20 सूरत के हैं 10 सूरत के बाहर के हैं Right. तो उनका इंटरव्यू लेना कई बार ऐसा भी हुआ है कि मुझे सिर्फ 25 मिनट के इंटरव्यू के लिए 4 घंटा वेट करना पड़ता था Okay. एंड और बुक लिखना एक चीज बहुत मोनोटोनस टास्क है Exactly. तो आई रिमेम्बर द सीन्स की मैं घर पे कभी स्टडी टेबल पे बैठ के लिख रहा हूँ कभी स्टडी टेबल के ऊपर कभी स्टडी टेबल के नीचे कभी बेड पे कभी हॉल में कभी बालकनी में क्योंकि वो एक्टिविज्म नहीं था माइंड वाले बहुत फोकस था अब अगेन मी बीइंग एन एथलीट थोड़ा सा एक्टिविज्म चाहिए बॉडी को Exactly. Exactly. तो वो सब भी बहुत सारा हुआ एंड पिछले 4-5 साल में मैंने जितने भी अचीवमेंट्स किए मुझे सब में लगा कि शायद मैं थोड़ा बेटर कर सकता था शायद मैं Wow. और अच्छा कर सकता था बट ये बुक लिखने के बाद पहली बार मुझे लगा कि इसमें मैंने मेरा जी जान दे दिया इससे ज्यादा मैं दे ही नहीं सकता था पॉसिबल ही नहीं था मैं Complete. कॉन्शियसली सोचना चाहूँ तो भी नहीं सोच पाता वैसा Exceptional. Exceptional. So now just let us know that how you jump to these profiles, how you have selected the people. if I tell you there was just a simple core criteria you should make 100 crore plus every year Okay. so if you do make that you are in the book क्योंकि बहुत सिंपल है सर कि कहीं भी देखने जाओ इन दी एंड मनी स्पीक्स Exactly. एंड देयर इज देयर इज अ सेइंग कि अगर लैम्बोर्गिनी खरीदें तो टाटा वालों के साथ नहीं बैठ सकते Right. तो टाटा वाला आपको कुछ ज्ञान देंगे तो उससे आप लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद पाओगे Right. तो अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे बुक में जो 30 लोग हैं उसमें से 20 लोग ऐसे हैं जो 100 करोड़ प्लस का बिजनेस करते हैं Okay. अब मैंने 20 का क्यों बोला क्योंकि बाकी 10 ऐसे हैं जो लोग 600 to 800 करोड़ प्लस का बिजनेस करते हैं Wow. उन 10 में से 5 ऐसे हैं जो 1000 से 5000 करोड़ का बिजनेस करते हैं और उनमें से 2 ऐसे हैं जो 10,000 करोड़ प्लस करते हैं Okay. सो जैसे जैसे मैंने शुरू किया था मुझे खुद को एक पोटेंशियल रियलाइज होने लग गया कि और मैं एक स्टूडेंट हूँ Okay. तो मेरे लिए एक लेवरेज बन जाता है Yeah. जब आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो तो एक बाउंड्रीज आ जाती है स्टूडेंट बन के उनके साथ कनेक्ट करके आज इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ मेरा एक फादर सन रिलेशनशिप है या सन एंड ग्रैंडसन रिलेशनशिप है बड़े भैया जैसे रिलेशनशिप है तो लाइक आई सेड नेटवर्क इज अ नेटवर्क Exactly. So Yogi, just let us know that everybody when we were students, I just thought that I will become a doctor, I will become a pilot, I will join the army. Then why you have chosen this? You already have two options. You mentioned that you were playing Indian team in the international level, and also now as a writer. So why you have chosen to become a writer? um okay so first if I elaborate on your first half of the question Yeah. we can choose whatever we want to Okay. right and I think this is the biggest problem in all the teenagers and youth facing today their why isn't clear their purpose isn't defined Yes. their thoughts will keep altering and a lot of them say कि भाई we get distracted यार नहीं हो पाता फैमिली हो गया फैमिली फंक्शन में चला गया घूमने चला गया
Your why wasn't strong enough. Why do you want to achieve it? It wasn't strong enough. अगर मैं मेरी बात करूं, थोड़ा सा फ्लैशबैक, तो मैंने 5 साल पहले मेरे हार्ट और विजन को एक गोल पे अलाइन कर दिया था. Okay. दैट वाज माय वाई. नाउ आई थिंक एवरीवन नोज कि अंदर दो वॉइसेस होती है, एक इधर एक इधर, Yes. राइट? तो मैंने 5 साल पहले उन्हें अलाइन कर दिया. उसके बाद मैंने सर इसको लॉक कर दिया. 5 साल मैंने इसकी नहीं सुनी है. मैंने सिर्फ इसकी सुनी है, विच इज द रीजन वाई आई एम हियर टुडे. एंड वो 5 साल मुझे काफी रिग्रेट भी हुआ है, क्योंकि आई हैव नॉट गॉन टू पार्टीज, आई हैव नॉट गॉन टू फैमिली फंक्शंस, आई हैव नॉट गॉन टू फैमिली वेडिंग्स, बिकॉज आई हैड टू वर्क. एंड आई रियली रियली आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास ऐसे पेरेंट्स थे जो ये अंडरस्टैंड कर पाए और मुझे सपोर्ट कर पाए. यज्ञ काम है, ये डेट पे वेडिंग आ रही है, आर यू अवेलेबल? नहीं, क्या काम है? इज इट इम्पोर्टेंट? यस, कोई बात नहीं, वेडिंग होती रहेगी, काम पहले कर लो. Right. So this was it. And second, being in writer, sir, I think I was very privileged enough from the beginning to have good mentors, have good resources, have fantastic parents. I think सब लोग के पास वो privilege नहीं होता है. बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मेरे को कुछ करना है बट क्या मालूम नहीं, मेरे को ये करना है बट कैसे मेरे को मालूम नहीं. Right. So if and I see it as a responsibility, as my morals, that if I have something, it is my responsibility to give it to others who don't. So if I was blessed enough and privileged enough to have so much knowledge inside here, then it's my responsibility to teach and create further, create more leaders Yeah. like this. तो उसी जर्नी में मैंने वर्कशॉप्स लेना भी शुरू कर दिया. Okay. आज मैं अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके workshops लेता हूँ on self development. Until now I have trained and inspired more than 1100 students, Wow. and I have personally mentored more than 780 plus students in the last 5 years. Wow, great. So being a writer comes from there कि भाई मेरे पास knowledge है तो अपना काम है दूसरों को देना. Right, exactly. So yeah, how difficult it was, to write a book. Means, when I feel that I want to start to write a book, but that spark of start writing a book, it's very difficult. Once you start writing, it may be easy to carry on, Right. but to start that, it's difficult. How you have started that? If I tell you again, when it comes to the start, I think it again goes on your why should be strong. Okay. Be it anything, be it the simplest thing. If I'll tell you, I only have two whys in my life. One why is to make my parents proud, and second why is to inspire others. Okay. And these two are like embedded, carve हो गए के मेरे दिमाग के अंदर पत्थर से. And it's hard. It's hard. Book writing is Yeah, hard. it's that. It's आपको बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग में घुसना पड़ेगा. बहुत बार मिक्स्ड ओपिनियंस आएंगे आपके ही दिमाग से, किसी और से नहीं. उनको भी आपको फिल्टर करना पड़ेगा. आई टेल यू, मेरे लिए 3 महीने की जर्नी ऐसी थी कि आई गॉट इम्यून टू डोलोज एंड कैफीन्स बिकॉज ऑफ हेडेक, which I'm not at all proud and nor do I recommend any viewers. But this was my journey, and मेरे को headaches भी इतने होते थे. But again, because my why was strong, I'll tell you, I remember this picture very well. One of my worst headaches in my life, मुझे एक दिन आया था when I was writing a book, the draft. Headache आया, मैं I was typing, अचानक से headache आया. I just cried like this कि shit, headache आ रहा है. And then I was like, I don't have time to cry. पहले मेरे को draft खत्म करने दो, उसके बाद देखा जाएगा. okay. And then I started working again. Merely 3 seconds, there was the pause कि shit, headache आ रहा है. ओ नहीं, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, वापस काम पे लग जाओ. Yeah. तो जर्नी तो सर बहुत ज्यादा हार्ड है. और जैसा आपने कहा, अगर शुरू कर दिया ना तो नहीं छूटेगा. Yes, exactly. ग्रोथ, आई टेल यू, ग्रोथ इज एडिक्टिव. Yes, growth. ग्रोथ Exactly. को एक बार चख लिया कि आपके अंदर के पोटेंशियल को अनलीश होते हुए एक बार चख लिया, तो आपकी खुद की इच्छा नहीं होगी कि भाई क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ. मैं सो नहीं पाता था while writing the book. I've hardly slept 2 or 3 hours, क्योंकि जब भी सोता था मेरे दिमाग में होता था, साले सो कैसे रहा है, उठ और बुक लिख. ये टाइम सोने का नहीं है, नींद विंद होती रहेगी, काम पहले, डेडलाइन है अपनी. Right. एंड अगेन इट वाज अ सेल्फ डेडलाइन, किसी और ने मुझे वो डेडलाइन नहीं दी थी. Okay.
So why you have selected that deadline? ऐसा कुछ तो सर स्पेसिफिक नहीं था Okay. डेडलाइन सिलेक्ट करने में, बट तो लाइक मेरे घर पे जब भी गोल प्लानिंग होती है, वी मेक श्योर कि एवरी सिंगल गोल को, आई टेल यू, जस्ट टू मेक अ गोल वी स्पेंड 100 आवर्स, Yes. 120 आवर्स। Yeah. उतनी थरो प्लानिंग लगती है एक गोल बनने में, और Okay. उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक डेडलाइन से, कि Exactly. कब तक आपको ये खत्म करना है। Hmm. और अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, तो मई से मेरी वेकेशन शुरू हो रही थी स्कूल से, लाइक उसके पहले मेरे को सब निपटाना है। Okay. एंड आई ऑल्सो टेल यू, क्योंकि मैं बुक लिखना तो मैंने जून में सोचा था, बट Right. देन मैं सिलेक्ट हो गया फॉर द स्पोर्ट्स। तो एक सर, सोसाइटिकल प्रेशर बोलो या पेरेंट्स प्रेशर बोलो या स्कूल के मेंटोर्स का प्रेशर बोलो, कि भाई सोचा तो बुक लिखने का था लेकिन सिर्फ खेला है, क्योंकि Okay. आई थिंक दैट इज अ वेरी कॉमन मेंटालिटी Yes. टुवर्ड्स स्पोर्ट्स Yes. इन एंटायर इंडिया। तो एक वो भी बात हो गई कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ, Okay. इट्स अबाउट टाइम। So okay, now let's come back to the writing. So while writing, everybody, all the authors are facing a lot of issues. So what major issues you have faced? In terms of writing, I will say, being a new author, Yeah. first time author, the formatting was little tricky, Okay. because every different book had its own formatting, Mhm. and it was a very mix of opinions. Yeah. So, like, our common friend Kaushal uncle, Mhm. he told a different formatting. My father, who has read couple of books, he told a different formatting. I had a different formatting in my mind. The Okay. books I have read had a different formatting, and the content proofreader had a different formatting. Right. तो वो एक बात, and second I would say, the amount of burnout mentally you get, Yes. it's very challenging. क्योंकि भले आप सिर्फ, लेट्स से आपको 10 घंटा लग रहा है टाइप करने में, लेकिन 10 घंटे में आपका दिमाग जो दौड़ रहा है, Yeah. that critical thinking, like I told you, that was very new to me. मैं इतना ज्यादा बर्नआउट पहले नहीं हुआ, चाहे मैंने कितना भी बड़ा अचीवमेंट किया हो। Okay. एंड वन थिंग आई लर्न, especially in terms of writing, was there is a difference between productive and a difference between being efficient. Right. You may be working 18 hours a day, but are you 18 hours that may be productive, but what were the efficient hours? Right. So I eventually came to learn this in the end of the process, but I'm glad I learned it, even if it was late. Yeah. कि भाई अगर मैं शायद 4 घंटे लिखता, फिर 1 घंटा ब्रेक लेता, दिमाग को पूरा खाली कर देता, जीरो करके वापस लिखता 4 घंटा, तो और बेटर आता। Right. आई रिमेम्बर माई फादर केप्ट सेइंग कि तू लिख 2-3 घंटा, फिर 1-2 घंटा ब्रेक ले, और ऐसा ब्रेक ले कि ऊपर से खाली हो जाए सब। तू Right. ब्रेक में भी डेडलाइन के बारे में सोचता रहेगा तो सिर्फ टेंशन होगा। Exactly. बट अगेन, आई वॉज नेव दैट टाइम, और मेरे दिमाग में तो डेडलाइन ही चल रही थी। So yeah, how difficult it was, to balance as a student. So student's life you have, then you have the sports life, and then the third you have added the writer. So how you have balanced everything? Life is sacrifices. Yes. I'll tell you that. Right. I've sacrificed a lot somewhere or the other for the other. जब मैं मेरे स्पोर्ट्स खेलता था, तो मेरे फैमिली इवेंट्स एंड एवरीथिंग क्लैश होते थे, बट आई ऑलवेज गिव माई प्रायोरिटी टू स्पोर्ट्स। Okay. एंड एक बार मैं हमारे एशियन ओशनिक चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करके आ गया, Okay. देन आई सैक्रिफाइस माई स्पोर्ट्स फॉर माई बुक। Okay. एंड जैसा मैंने आपको बोला था कि मैंने इसको है ना लॉक कर दिया था 5 साल पहले, तो सैक्रिफाइसेस इतने सारे मेक किए कि एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया, तो फिर वो, आई मीन, you become directly focused, because if you're not focused, you're distracted. Right. It's that simple. And मेरे बुक में एक काफी अच्छा कोट है जो मुझे लगता है, जो सर रोहन मेहता ने बोला है, of just think, yeah, हाँ,
focused fool will do better than a distracted genius. Exactly. तो ये जो आ जाता है ना कि book, into authoring side, then into student life, and then into sports. मैं frankly बताऊँ तो सर मैंने student life cut down कर दी थी. Exactly. I was focused towards my goals. और स्टूडेंट लाइफ कब आता था जब मुझे मेंटली ब्रेक चाहिए होता था Okay. कि हाँ भाई चल फ्रेंड्स के साथ बाहर चलते हैं. दैट वाज वेरी ओकेशनल. Yeah. एंड जैसे जैसे आई गॉट बेटर, बुक लिख के आई स्टार्टेड experiencing new of myself, new creativity of myself, Yes. of displaying those wisdoms कि यार कितना ब्यूटीफुली अपन लिख सकते हैं चीजों को. तो आई स्टार्टेड देन लिंक्डइन पे ज्यादा ब्लॉगिंग एंड ऑल. Okay. और मैं लिंक्डइन पे वैसे भी मेंशन करने लगा मेरे पोस्ट को. एंड इट वाज अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी. एंड आई थिंक ये जो जर्नी है ऐसी, भले ऑथरिंग में नहीं हो लेकिन किसी ना किसी को कहीं ना कहीं फेस करना चाहिए. Perfect. और अगर आप राइटिंग में ये फेस कर लो तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है. बिकॉज यू लर्न टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू लर्न टू चैनलाइज दिस, एंड दिस इज सुपर कंप्यूटर. इसको Yes. चैनलाइज कर लिया तो Exactly. Even I write, so I know how hard it is to write. Even I write blogs and scripts and everything. So even I sometimes even I feel that it's the toughest. People think that to write book it's what it's easy, but it's not that much easy. So now just let me know that when you have decided that you are going to write a book, what was your parents and your teachers and your mentors and your friends' reactions? okay. So around May, I started thinking when I was in 10th. Okay. यानी 10th से 11th का जो समर वेकेशन ट्रांजिशन होता है ना, Yeah. उसके आसपास कि यार इस साल क्या अचीव करना है. Okay. तो 10th में आई ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्सर्ट इन सूरत, and I received the best leadership award at my school for 2 years consecutively. So wow. एंड ऐसा होता गया कि अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट. और जैसा मैंने आपको बोला कि अब अंदर से खुद को निखारने की बारी आ गई थी. Right. तो और जैसा मैं अलग अलग वर्कशॉप जाता था, आई इट वाज इन अ वेरी अर्ली एज आई रियलाइज द पावर ऑफ नेटवर्क. टुडे आई हैव कनेक्शंस इन ओवर 26 स्टेट्स ऑफ इंडिया कि आई कैन कॉल एनीवन इन अ मिनट एंड आई कैन गेट थिंग्स अरेंज्ड ओवर देयर. Wow. आज मैं कोई भी सिटी में जाता हूँ तो मेरे लिए ट्रांसपोर्ट, खाना पीना सब कोई और अरेंज कर देता है. फ्रॉम पिकअप फ्रॉम स्टेशन और एयरपोर्ट टू स्टे एट देयर प्लेस, फूड एंड एवरीथिंग. सो ये नेटवर्क, जैसा मैंने कहा कि एक बार ग्रोथ का कीड़ा लग गया तो छूटता नहीं है. Right. एक नेटवर्क का कीड़ा लग गया था तो उसकी वजह से लाइक आई टोल्ड यू क्रेडिबिलिटी एंड पीआर वाली बात आ गई कि भाई कुछ ऐसा करना है कि और नेटवर्क एक्सपैंड हो. Right. कैसे हो भाई, बुक से हो सकता है. क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ेगी, बुक से. Books. आई रिमेम्बर माई फादर रैंडमली टेलिंग कि यज्ञ ऑथर्स की बहुत क्रेडिबिलिटी होती है, हम लाइक लिख देते एक, व्हाई True. नॉट. True. एंड आई स्टिल रिमेम्बर आउट ऑफ 6-7 mentors at my school, 3 or 4 of them laughed at me. Okay. Only 1 or 2 accepted कि हाँ ये लिख लेगा. But then I wrote it. So it was a good journey. It was a life-changing journey. So how now once once you start writing your book, you must have shown this that today I've written this much, today I've written this much to your parents, maybe to your friends. So when you started writing and on the journey of that writing, what was their belief on you? It must be gradually increasing. There was this one mentor, Okay. which I would even like to specifically name because I don't think how will I ever be able to repay her. Her name is Batul Merchant, Yeah. and she has been like a big parent-like mentor for me. Because I think you can also relate. The biggest flaw in the Indian culture, I would say, is the father and son relationship Exactly. in terms Exactly. of family. And even while writing the book, my father never acknowledged that कि हाँ भाई बंदा book लिख रहा है. Okay.
एंड वो पूरा टाइम इन द 3 मंथ्स मेरे दिमाग में भी ये बढ़ते गए कि भाई बुक ही तो लिख रहा है, बुक ही तो लिख रहा है। तो आई Exactly. नेवर अंडरस्टूड दैट वैल्यू कि भाई ऑथरिज्म की क्रेडिबिलिटी क्या है। It took me 2 whole months after writing the book to understand the value when people started coming to me. Okay. So this mentor, Batul ma'am, she put her everything into me for this project. Okay. And I remember she even consoling me sometimes when I was very frustrated or irritated. क्योंकि 4 घंटा वेट करना कोई इंटरव्यू के लिए और फिर सिर्फ 25 मिनट का इंटरव्यू मिलना. But Right. again, that guy is the big person there, Yeah. right? So I'm the smaller one here. And she had a lot of support in me. Okay. And then it was of course कि मेरा अंदर से भी सेल्फ ड्रिवननेस बहुत था. Right. बिकॉज मोटिवेशनल एक एक्सटर्नल फोर्स है, वो लंबा नहीं चलेगा. Exactly. सेल्फ ड्रिवननेस बहुत चलेगा. एंड अगेन दैट विल कीप रिवॉल्विंग इनटू योर व्हाई. Yeah. और आई स्टिल रिमेम्बर कि बुक लॉन्च के हफ्ते भर पहले वन ऑफ माय डैड्स मेंटर टोल्ड माय डैड कि भाई ये बुक लिखना छोटा काम नहीं किया, तू इसे अभी तक अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा. Okay. That is when he first appreciated me, just before the book launch. Okay. तो और एक वो रहता है, पता है कि अगर पापा मुझे एक्नॉलेज नहीं करते ना, तो मेरी अंदर से इच्छा और होगी कि मैं और मेहनत करूं Yeah. ताकि पापा मुझे एक्नॉलेज करें. Yes. वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इन माय बुक सेड कि आज मेरे 9 बिजनेसेस है, आई एम सो सक्सेसफुल, आज तक पापा ने मेरी तारीफ नहीं की है, हर बार कमियां निकालते गए. बोले लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर वो मेरी तारीफ कर देते एक भी दिन, तो मैं घर पे आराम से बैठा हुआ होता. True. तो आई थिंक इनडायरेक्टली वो पेरेंट्स का भी आ ही गया कहीं Yeah. ना कहीं से. एंड द मेंटर दैट आई टोल्ड यू. And what about your friends? हाँ, What about your friends? माय फ्रेंड्स, यस, दे वर वेरी सपोर्टिव. Okay. क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू, बुक लिखना बहुत मोनोटोनस हो जाता है. Yeah. तो मैं कई बार उनके भी घर गया हूँ कि भाई मेरे घर में अब मुझे सेट नहीं हो रहा है, मैं तेरे घर आके काम करूंगा. Wow. एंड दे वाज सो सपोर्टिव कि मैं स्कूल भी नहीं जाता था, वो लोग तो जाते ही थे. तो भी एंड एक टाइम पे सर कुछ फ्रेंड्स आपके फैमिली बन जाते हैं. Exactly. वो मेरे वैसे दोस्त थे, तो मैं उनके घर ही रुका हूँ हफ्ता भर. एंड आई इवन रिमेम्बर दिस इंसिडेंट दैट आई वाज हाफ asleep, वेरी वेरी कॉन्शियस. मतलब वो होता है ना कि सो गए बट कॉन्शियसली Yeah. मालूम है बाहर क्या चल रहा है और ये सब. आई वाज सुपर एग्जॉस्टेड. मैं सुबह 5 बजे का निकला हुआ था. 5 बजे आई वेंट टू बड़ौदा. वहां पे मैंने 3 इंटरव्यूज लिए. देन आई वेंट टू अंकलेश्वर और वहां से मैं रात को 12-1 बजे सूरत आया था. Okay. और मैं सीधा मेरे फ्रेंड के घर गया था. अगेन आई वाज नॉट स्लीपिंग, आई वाज राइटिंग. तो आई स्लेप्ट अराउंड 3 or 4. एंड व्हेन आई स्लेप्ट ना, आई मतलब वो कॉन्शियसली मैं अवेक था. Okay. माय फ्रेंड वाज मसाजिंग मी. Wow. ही नेवर टोल्ड मी अबाउट दिस, ही डज नॉट नो दैट आई नो इट. एंड वो एक सपोर्ट था जब मुझे वापस लगा कि आई एम सो ब्लेस्ड इनफ, मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं. उसने मुझे आज तक नहीं बताया है Wow. ना, मैंने उससे कभी पूछा है, मुझे पता था तो भी. एंड ही वाज लाइक, आई नो ये बंदा पागल जैसे काम करता है, हमारी सुनेगा नहीं, आराम करेगा नहीं, थोड़ी मसाज कर देता हूँ. Great. Great. सो थिंक So, till now, what I understand is that your inner strength is too much. Means you know why. You are just repeating why. So you know why you are here. So how it's too strong? हाउ इट्स. How it is too strong? Because at certain level, when you reach certain level, it drops down automatically. That I have achieved this, now enough. But your hunger to achieve something is growing. So why? Okay, that is a good question. So I think it's more on the atmosphere and संगत जिसमें आप रहते हो. Okay. And eventually I'll tell you it's a trap that I fell into. कि भाई when I started so much after COVID when I came in 9. Right. So I was like कि भाई 9th अच्छे से कर लेता हूँ, 10th आराम से जाएगा. Yeah. Then in 10th I was like भाई 10th अच्छे से कर लेता हूँ, 11th आराम से जाएगा. Right. 10th में वही हो गया कि 11th अच्छे से कर लेता हूँ, 12th आराम से जाएगा. बट
कई ऐसा हो गया कि 9th में मैंने ये बार सेट किया खुद के लिए, तो हो गया अब नीचे तो नहीं जा सकते। 10th में ये बार सेट किया, 11th में Yeah, ये किया, और अब 12th में और ऊपर जाना है। right. So, and again, one of the things, one of my entrepreneurs in the book said, Sir Gaurav V.K. Singhvi, everyone should have a PhD, passion, hunger, and discipline. Perfect. क्योंकि आपको मोटिवेशन हैप्पी टाइम्स में गोइंग रखेगा, बट पैशन लो टाइम्स में भी गोइंग रखेगा। Exactly. एंड डिसिप्लिन तो यू अंडरस्टैंड, आई थिंक दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स, एंड हंगर फॉर ग्रोथ Yes. वो बहुत जरूरी है। और मैं स्टार्टिंग से मेरे अंदर नई नई लर्निंग्स लेता जाता था, Okay. एंड माय मैच्योरिटी केप्ट इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। और मैं बहुत कोट्स भी फॉलो करता था। वन ऑफ द कोट्स व्हिच इज अगेन इन माय हार्ट ऑलवेज इज, व्हाइल यू आर रेस्टिंग समवन एल्स आउट देयर इज वर्किंग। Yeah. सो इट इज अबाउट गिविंग योर बेस्ट एवरी डे। और जो मैं इंटरनली स्ट्रांग होता गया से उसका काफी असर, मैं जो वर्कशॉप्स जाता था Okay. वहां से भी होने लगा। क्योंकि इंडिया का ये कल्चर बहुत अच्छा है कि कोई सीनियर है और कोई बच्चा है, बच्चा पोलाइटली आस्क करेगा तो सीनियर उसे Exactly. गाइड करेगा, ब्लेसिंग्स देगा अपनी। Yes. तो मैं जो वर्कशॉप्स जाता था वहां पे आधे लोगों के बाल सफेद होते थे Okay. और बाकी आधों के बाल ही नहीं होते थे। True. सो आई वॉज द यंगेस्ट, next would be 45, 50, 55, 60 with multiple business streams, earning, kings of their industries. तो उन लोग ने मुझे जितना सिखाया, उनने मुझे जितना एक फेथ दिया, वो मेरे लिए और मोटिवेशन बनता गया। अब मैं उस टाइम तो उन्हें रीपे नहीं कर सकता, शायद मैं आज भी नहीं कर सकता, बट ये मेरे अंदर जरूर रहता है कि जिस दिन मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, मैं सबसे पहले मेरे सारे मेंटर्स को आई विल रीपे इन समथिंग और द अदर। Okay. तो Great. एक वो पॉजिटिव ऑरा में अगर आप रहते हो ना, तो नेगेटिविटी आपको नहीं गिरा पाएगी। Exactly. और मेरे लिए बुक, अब जैसे अगर मैं बुक में भी लिखते वक्त बहुत थक जाता था, Hmm. तो जब एंटरप्रेन्योर से इंटरव्यू करने जाता था, वो इंटरव्यू मुझे एनर्जाइज कर देता था, फिर मैं और लिख पाता था। सो संगत का भी आई थिंक काफी असर पड़ता है यहाँ पे। So how you have prepared yourself for these interviews? How you are preparing yourself? Means you are looking at their profiles and what their life, that what they have achieved, how they have achieved. You read and then go, or you are just asking the questions what you have in mind. ओके, सो इसमें मैंने अपना नेटवर्क को यूज किया था। Okay. मैंने मेरे नेटवर्क के 5 सबसे पावरफुल लोग को कॉल करके बोला कि अंकल, ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये करना है, टारगेट है कि 100 करोड़ प्लस का होना चाहिए, आप कहीं कनेक्ट करवा सकते हैं? Okay. और वो 5 से और दो मिले, और ऐसे 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 चेन बनती गई। हर एक इंटरव्यू के बाद मैं पूछता था, सर अब आप एक छोटा अगर मुझे हेल्प कर सके, कैन यू कनेक्ट मी विद समवन यू नो दैट आई शुड इंटरव्यू। अब क्या होता है, अगर मैं किसी और से पूछता हूँ जिसका ले रहा हूँ, तो सीधी सी बात है कि वो अपने से नीचे आदमी का तो नहीं बताएगा, या Right. तो उसके लेवल का या तो उनके ऊपर कोई मेंटर का। Right. तो वैसे करते करते मैं डेवलप करता गया, और मैंने मेरे इंटरव्यू में डेफिनेटली उनसे उनकी जर्नी भी पूछी थी, उनको अच्छे से समझा था, बॉन्ड किया था। बट आई मेड श्योर कि इन द बुक मुझको उनकी जर्नी नहीं लिखनी है, Exactly. मेरे को सिर्फ उनकी लर्निंग्स लिखनी है, डायरेक्ट एप्लीकेबल लर्निंग्स। बिकॉज इन द एंड दैट वाज द मेन मोटो कि टफेस्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड फंडास इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वेज, Yeah. कोई भी पढ़ के समझ सके। Yeah. So now there are a lot of students who are inspired to be a writer, who wants to be a writer, but as a parent even sometimes the parent feel that writer banna is not good. So how you have convinced them, or how you can convince them if someone is watching right now that, and if they want to be a writer, so how they can convince their parents? I'll say it very briefly. टेक्नोलॉजी आगे रूल करने वाला है। टेक्नोलॉजी चेंज होता रहेगा, अडेप्ट होता रहेगा, इंफॉर्मेशन विल कीप ऑन चेंजिंग। द ओनली थिंग दैट विल नॉट चेंज इज द वैल्यूज दैट आर इन अ बुक।
Right. जो ब्लैक एंड व्हाइट में एक बार प्रिंट हो जाता है. एंड व्हेन यू बिकम एन ऑथर, it's not just about writing a book with 100-200 pages. It is about telling the world कि I am expert at something and I can guide you better over there. Right. आज आप देख लीजिए कि कोई भी बुक है, I can say this very openly कि कुछ ऐसी ओजी बुक्स कह सकते हैं, वो आप पढ़ो और उतना लेट्स से अगर वो बुक पढ़ने में आपको लगते हैं 50 आवर्स फॉर Okay. से, और वही 50 आवर्स आप ऑनलाइन रिसर्च करो ऑन सेम लाइंस, you will not even find 5% of the values that is in the book. True. क्योंकि बुक कोई लिखता है तो अपने एक्सपीरियंस से लिखता है, अपने आई विटनेस से लिखता है, एंड एक जो जर्नी में से लर्निंग निकलती है ना, एक संघर्ष ही आपको बनाता है, और वो सब संघर्ष ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है. एंड आई थिंक यू विल अग्री कि जो भी बुक लिखता है वो इसी पर्सपेक्टिव से लिखता है कि आई वॉज प्रिविलेज्ड इनफ टू हैव दिस एंड इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर इट. Yes. दैट इज द वेरी इनिशियल अप्रोच कि भाई मैं इतना अच्छा हूं तो क्यों ना मैं ये नॉलेज सबके साथ बांटू. Okay. और वही अगर मैं वो कुछ ओजी बुक्स बोलूं तो वन इज द 7 इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल. मे बी आप फाइनेंशियल लिटरेसी में जाओ तो रिच डैड पुअर डैड. Yeah. मे बी आप लीडरशिप रोल्स में जाओ तो द डायरी ऑफ अ सीईओ. Yeah. अगर आपको स्पिरिचुअली खुद को अनलॉक करना है तो सीक्रेट ये सब तो सबको मालूम है, बट अनदर बुक इज द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड द लीडर विद नो टाइटल, रॉबिन शर्मा. Yeah. देन जापानीज सिस्टम्स पे भी काफी बुक है लाइक इकिगाई, काइजन. Yeah. तो ये सब कुछ फंडास है, कुछ फाउंडेशंस है Hmm. जो होनी ही होनी चाहिए. आज जब मैं जाके लोगों को मेंटर करता हूँ, स्टूडेंट्स को मेंटर करता हूँ, पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि क्या गाइड करे, एक चीज जो मैं उनको हमें 100% गाइड करता हूँ इज वॉच ए टेड टॉक एवरी डे एंड रीड एटलीस्ट 20 पेजेस ऑफ अ सेल्फ डेवलपमेंट बुक एवरी डे. Okay. भले ही आप 20 पढ़ो कोई बात नहीं, 10 पढ़ सकते हो 10 पढ़ो. इट्स Okay. नॉट अबाउट रीडिंग एवरीथिंग एट वंस, इट इज अबाउट रीडिंग. Okay. और आई टेल यू, ये बुक्स अगेन यू विल गेट एडिक्टिव. आफ्टर 20 पेजेस यू विल बी बोर्ड एंड देन यू विल बी एडिक्टिव. Right. और ये इतनी नॉलेजेबल बुक होती है कि आप एक बार में 30 से ज्यादा पेज पढ़ ही नहीं सकते. Yeah. नॉलेज आपके दिमाग से बाउंसर चली जाएगी. Right. तो जब आप एक ऑथर बनते हो, यू जस्ट डोंट बिकम अ राइटर, यू बिकम अ credible person who people can trust. Great. You become someone who you don't know how many lives you have led or shown path to. And I think that is the biggest and best karma that is available कि भाई आपकी वजह से कोई और की लाइफ में betterment आया. Yeah. So now you are inspiring, a lot of people now. So, how to inspire someone to read, because nowadays everyone is busy in reels. Right. Right. The decision power, 30 seconds में क्या देखना है, they will decide in 3 seconds only. So it's a bit of hard now to concentrate and to be a reader, good reader. So how to be a good reader first? I'll tell you very honestly, I was not a good reader. Oh, I was not at all a good reader. I okay. started becoming a reader after writing the book. Oh my God. बुक के पहले मैंने गिनी चुनी बुक्स ही पढ़ी थी, मैक्सिमम 5 और 10. Okay. बुक के बाद आई रियलाइज कि साला कितना पोटेंशियल है इसमें. एंड ओवर हियर आई थिंक आई विल मेक दिस स्टेटमेंट टू पेरेंट्स कि हैव दैट फोर्स ऑन द चाइल्ड. Okay. क्योंकि आज का जनरेशन जो है, इफ आई टॉक अबाउट द जेनजीज, Yeah. ठीक है, तो एक तरफ इन्फ्लुएंस आ गया सोशल मीडिया का, Exactly. एक तरफ आ गया फ्रेंड्स का, Yeah. एक तरफ आ गया शायद पार्टनर का, एक तरफ आ गया सोसाइटी का, एक तरफ आ गया स्कूल का. Yes. मैं ना वो पिस जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है. क्योंकि इधर से कोई कोच और बोल रहे हैं, पेरेंट्स ने डाल दिया, फ्रेंड्स बोलेंगे चलना कोई बात नहीं आज इधर चलते हैं, मेंटर्स डांट देंगे कि ये कैसे दोस्तों के साथ घूम रहे हो, कल दोस्त बदल. तो वो आपसे शिफ्ट होते रहोगे. Right. लेकिन पेरेंट्स फर्म होके ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, रीड द बुक.
आई एम टेलिंग यू, आप सिर्फ अपने जो चाइल्ड है या किसी के जो भी आपके लगते हैं उन पे फोर्स करके 30 पेजेस पढ़ा, उसके बाद आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो आके बोलेगा नेक्स्ट बुक खरीदनी है, ये वाली खरीदनी। Wow. बिकॉज ग्रोथ इज एडिक्टिव, लर्निंग इज एडिक्टिव। मैं आई यूज टू हेट रीडिंग। Okay. मैं सो जाता था, नींद नहीं आ रही भाई बुक खोलो। बट अब जब मैं बुक की वैल्यू समझ गया हूँ ना, मैं खुद को कोसता हूँ कि काश साला मैंने 5 साल पहले शुरू की होती तो आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आज मैं यहाँ होता। Right. इतनी बुक हैज नॉलेज कंप्लीटली, इन्फिनिट पोटेंशियल है बुक्स के अंदर। Yes. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि नॉलेज इतनी अच्छी है बुक्स में कि आज अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, वो मैंने खत्म कर दी, आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद मैं वापस वो बुक पढ़ूंगा तो मैं वापस कुछ नया सीखूंगा, Exactly. क्योंकि मैं कोई और मैच्योरिटी से आज वो बुक पढ़ने वाला हूँ। Right. और कब आपको कहा क्या क्लिक हो जाए लाइफ में वो मालूम ही नहीं है। इवन वन बुक आई वुड सजेस्ट स्पेशली फॉर द जेनजीज इज द अनपोस्टेड लेटर। Yes. 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 वो बुक का एक चीज मेरे को बहुत कैची लगता है कि वो बुक में ऑथर्स नोट ने ऑथर ने लिखा है, द क्वेश्चनर इज नॉट सीकिंग द आंसर्स, द आंसर्स आर सीकिंग द क्वेश्चनर्स। Exactly. ओपन एनी पेज, एनी पैराग्राफ, एनी लाइन, यू विल फाइंड योर आंसर। एंड हाउ मैग्निफिसेंट। मैंने वो ट्राई किया हुआ एंड इट वर्क्स। हर एक मतलब whenever it's not a book that you read directly. Yeah. It's जब mentally आप confusion में हो, खोलो पढ़ो and you get your answer। तब आपको रियलाइज होगा कि बुक का जो पावर है। तब आप फ्रेंड्स को भी साइड में डाल दोगे, मेंटर्स जो सही गाइड कर रहे ओके, जो गलत कर रहे उनको भी साइड में, एवरीथिंग विल बी अवे। नॉलेज इज पावर इन द एंड। Exactly. So when you are writing this book, you must undergone some mental health issues, decision making issues. So how you have dealt with that? I was at the verge of even getting, Quit. migraine over here Yeah. because of the headache. बट ऐसा होता जा रहा था कि मैं जो बुक लिख रहा था, मैं जो वैल्यू देने के लिए प्रोवाइड कर रहा था, वो बहुत स्ट्रांग इनफ था। Okay. एंड मेंटल तो सर ऐसा है कि अगर आप फोकस्ड हो तो ये सिर्फ एक है कुछ जो चला जाएगा अपने आप। Hmm. एंड इफ सो 90 out of 100% inside your mind, 90% is a subconscious mind and 10% is your conscious mind। Right. अब दोनों दिमाग है ना, they are dumb, they do not know the difference between reality and fake। तभी the things came into place, the affirmations, the fake it till you make it, वो सब वाली बातें। क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो अंदर इनबिल्ट कर लेगा। Yes. कई बार शायद आपने देखा होगा कि बहुत इमोशनल कुछ पढ़ता है तो आंख में आंसू आ जाते हैं, Yeah. क्योंकि दिमाग को लग रहा है कि ये हो रहा है अभी फिजिकली। तो अगर आपकी मेंटल इमेज ही स्ट्रांग है, ठीक है, बुक लिखते वक्त कि भाई मैं बुक लिख रहा हूँ, आई विल विन, तो अपने आप खुद को रीअश्योर कर रहे हो। एंड आई ऑलवेज से दिस कि नेवर ट्रस्ट एनीवन, नॉट इवन योरसेल्फ, बट ऑलवेज ट्रस्ट एफर्ट्स। अगर मैं खुद पे भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी करप्टेड होता है भाई, चलना Yes. 2 मिनट लेट जाते हैं, वो Exactly. 2 मिनट का 2 घंटा कब होगा मालूम नहीं पड़ेगा। Yes. Yes. बट मेरे को मेरे एफर्ट्स पे ट्रस्ट है कि अगर मैं इतनी मेहनत डाल रहा हूँ तो सक्सेस तो मिलना ही है। अगर कोई और आपके साथ कुछ गलत कर दे तो पहले ये देखो कि उसने एफर्ट्स 100% डाली थी, वॉज हिज इंटेंशंस राइट, यस, तो भाई गलत कोई और रीजन से हो सकता है। Yes. ऑलवेज ट्रस्ट दैट एफर्ट्स, और वो आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज बनता जाएगा। Yes. और आपको हमेशा खुद को तो ऊपर ही देखना है, बट रहना ग्राउंडेड है। इफ आई वांट अदर्स टू सी मी एट 10, आई शुड सी माई सेल्फ एट 10। Yes. बट अगेन मेरे को रहना ग्राउंडेड है, क्योंकि आज अगर मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, इस चेयर का एक व्हील टूट गया तो मैं गिर जाऊंगा। Right. मैं जमीन पे ही बैठा हूँ तो कौन मेरे को कितना ही गिराएगा, कौन मैं खुद को कितना गिराऊंगा। But yeah, sorry Humbleness, to cut you. Sorry to cut you in between. yeah, But it's sometimes it's difficult. Like when you have published a book, you feel that I'm an author now, published author. And it's a bit hard sometimes to
cope up with your friends who are not doing the same work, or maybe relations in your friends, family. It's hard. And another thing is that when you start writing something, your perspective will change, and then you Definitely. realize that this group of friends or this group of relatives are not doing worth, and they're not worth me. So now, how you have handled it? Um, if I'll be honest with you, from past 4 years, I've been trying to find someone who I can match my maturity with, जिनके साथ मैं बैठ के अच्छी इंटेलेक्चुअल बात कर सकता हूँ, विद द कंडीशन कि वो मेरे एज का होना या होनी चाहिए. दैट Exactly. इज व्हेन वी कैन कनेक्ट. बड़े मेंटर्स तो मेरे पास बहुत है जिनके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, बट सब कुछ नहीं कर सकता, भले ही कितना भी हमारा लेवल ऑफ बॉन्ड हो. आई थिंक दैट अगेन कम्स अप टू योर पर्पस. Yes. एंड गोल क्या है तुम्हारे दिमाग में? बिगिन विथ एंड इन माइंड. आज मेरे जो फ्रेंड्स है, उनके साथ मेरा एक ये इंटेंशन तो है कि भाई दे आर माई पीस, दे आर माई ब्रेक एरिया. जब काम नहीं हो रहा मैं उनके पास चला जाऊंगा. 100% आई बी देयर फॉर देम वेन एवर दे नीड मी. बट so that is the path I chose, and you need to choose that path. If you don't choose it right now, then 25 पे चूज करोगे, नहीं तो 30 पे करोगे, 35 पे करोगे, 40 पे करोगे, नहीं तो रिग्रेट करोगे. Right. आपको वो पाथ चूज करना पड़ेगा और उस पे डिटरमाइंड होके चलना पड़ेगा. Yes. You will fail, and unless you don't fail, you cannot get up. Failure is the fees to success, not the opposite of success. Yeah. तो मैंने ये पाथ चूज किया. अब आप जैसे कह रहे हो कि फ्रेंड्स का भी हो जाता है या रिलेशनशिप का भी हो जाता Yeah. है, तो एक तो आपके फ्रेंड्स आपके साथ अलाइन होने चाहिए. Exactly. जैसा मैंने आपको कहा, मेरे फ्रेंड का केयरिंग लेवल, वही ऐसा भी हो सकता था कि मेरे फ्रेंड्स मेरे को छोड़ दे के साला हमें टाइम ही नहीं दे रहा है. Yes. तो वो आपको सही सेट ऑफ फ्रेंड्स, एक संगत चूज करना. एंड एट द सेम टाइम अगेन अगर रिलेशनशिप पे आ जाते हैं, तो दिस इज माई पर्सनल बिलीफ, relationship is about making someone else feel more of themselves, Yes. that she feels more lovable to herself, and that should be from my side as well. Yes. तो ये नहीं आना चाहिए फिर कि भाई तू मेरे को टाइम नहीं दे रहा है. उल्टा वो सपोर्ट में आ रहा है. अगर ये आ रहा है कि भाई टाइम नहीं दे रहा, तो भाई वो गलत है. Exactly. आपके गोल के वो बीच में आ रही है. बी इट हार्श ट्रूथ. You need to do what is right and not what you feel is good. Yes. Takes time to accept that. Okay. So now you just mentioned that failure and success. So what is the definition of success for you? I haven't really thought it, but I think if I achieve less, it's okay. If I achieve more, it's okay. I should have my parents proud. Wow. They are my whole and soul and everything. First line is my parents, second line is my mentors, and third line is my friends. Because I still remember my parents have fought against entire family for some decisions on me, and 5 साल तक things happened, but मेरे book launch was a justification to all the efforts my parents were making. Right. And मेरे लिए इससे बड़ी कोई भी खुशी नहीं हो सकती. If my parents keep smiling for me every day, if they are proud of me, and अगर मैं लोगों को इंस्पायर करके जा सका तो. क्योंकि इन दी एंड आपने कितना कमाया कोई नहीं देखेगा, आप क्या क्या था आपके पास कोई नहीं देखेगा, बट आपने लोगों के दिलों में क्या जगह बना के गए, Exactly. वो हमेशा याद रखी जाएगी. Yeah. तो आई थिंक there was nothing bigger for me than making my parents proud and somehow being able to repay what my mentors have given me. उनके लिए मेरे दिमाग में और दिल में इतना ग्रैटिट्यूड है कि आई कैन नॉट मेजर इट. उनने मुझे इतना गाइड किया है, इतना सिखाया है. सो आई थिंक फॉर मी सक्सेस विल बी दिस मच इज इनफ फॉर मी. Okay.
So before we end, I just would like to know that if I read your book or when you read your own book, what are the takeaways can anybody can take from that book? So one thing that I've evidently mentioned is हर 30 लोगों के बाद chapter ends with advice to young entrepreneurs. Okay. That is कि आप कोई भी फील्ड में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो these are the advices that you need to have. Okay. For example, that line that Gaurav uncle said, you need to have PhD, passion, hunger, discipline. There is one line that Rohan Mehta says, like I told you, the focused fool one. Yeah. Then there is another one that to succeed you need enemies. Yes. If you don't have enough haters, you're not doing big things. Then ऐसी भी है कि एडवाइस उसी से लो जिसने वो काम किया हो, Oh, great. नहीं तो सिर्फ आपकी टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी. Right. सो ऐसी ऐसी चीजें हैं. देन उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने बुक में ट्राई किया है कि बहुत मोनोटोनस ना हो जाए. Okay. मैंने ग्राफ्स डाले हैं, मैंने माइंड मैप्स डाले हैं, सो दैट एक है ना विजुअलाइजेशन, मेंटल इमेज क्रिएट हो जाए. Right. और जैसा अपन पहले बात कर रहे थे कि मेंटल इमेज ही एवरीथिंग है, Yes. आपकी मेंटालिटी ही एवरीथिंग है. Yes. तो वो ग्राफ्स, वो इन्फोग्राफिक्स, और सबके अंदर एक एंटरप्रेन्योर सोचता कैसा है, वो चैलेंज को कैसे देखता है. क्योंकि कॉमनली देखा जाए तो यही सवाल होता है कि भाई हार्डशिप आई, कैसे सॉल्व की, क्या Yes. हार्डशिप आई, फिर हाउ डिड यू ग्रो, ये सब मेरे को नहीं करना था. सिंपल गोल था कि आज अगर कोई बुक पढ़ता है तो बुक बंद करते ही वो अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में डायरेक्ट एप्लीकेबल लर्निंग्स डाल सके. Wow. Great. और ऐसा हुआ भी है. एंड मेरे को बहुत सारे, आई टेल यू दिस वाज वेरी रिसेंटली, अबाउट 5-6 days बैक, मेरे डैड को एक नंबर से मैसेज आया, Okay. अननोन नंबर से. एंड द मैसेज रेड कि हेलो अमित सर, वी आर राइटिंग दिस लेट बट टू अप्रिशिएट यज्ञ, I and my husband are in complete awe of the book he has written, Roots to Roo. We have seen many successful stories, book of big CEOs, millionaires, billionaires, or immense failure stories, but they feel least applicable in a personal life. This book that Yagya has written feels so relatable and feels like easy home to success. So we just wanted to appreciate it, and Wow. वैसे वैसे करके उनने भेजा था. Wow. So after writing the book, 2, 3, 4 months later, getting this message was a very big reassurity Yeah. to me and my parents कि यार, the book solved its purpose. Yes. So now, just before we end, last question. Now, what next? I'm doing my own podcast, Okay. and again, that is for my PR and credibility, Okay. future assets. Like my goal is defined. Okay. मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ, अभी तक 1100 लोग के साथ ले चुका हूँ. टारगेट इज 2000 प्लस, एंड इवन आई मेंटर पीपल. एंड अगर टाइम मिल गया तो मेरी इच्छा तो है एक और बुक लिखने की. Okay. But this time, I'll write a book on how companies, what's the difference between companies and brand? Wow. Something Great. on those lines. Companies तो billions है, Yes. लेकिन brand गिने चुने ही है. Yes. 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 Brand is next level. Yes. And इसमें my target will be companies more than 50,000 crores. Wow. तो अभी तक अगर मैं 10,000, 20,000 crores reach कर लिया था, now I want to go 50,000. Another thing which I'm working on is building my own startup, Okay. and I'm working on this business. This is for teens and the youth for their self-development. Wow. So I'm afraid I cannot share the idea right now with you, No. 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 but this will be launched by the end of September, Okay. and this is going to be a revolutionary breakthrough for every teen, for every youth, for every parent thinking growth for their child. This is something extremely out of the box and something that is going to just blast its way through. So that is what I'm giving right now, my heart and soul to the startup, the podcast, and the workshops. Okay, Yagya, thank you so much for your time.
and all the best wishes for your podcast and for your startups and everything. And Thank you so much. I wish that I'll read your book again, the second book. Yes, yes. Thank you Thank you so so much. much for having me over. I just love the interaction and your